हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में लेसन 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट ड्यूरिंग adolescence many morphological and physiological changes occurs in the body of both male and female. So the body of male and female, they develop sexual characters which are brought about by hormones secreted by the endocrine glands. So what are these sexual characters which are common in male and female are that thick hair growth in armpits and genital areas. Skin becomes oily and may result in pimples. In girls, breast size begins to increase and girls begin to menstruate. Menstrual cycle begins to start, and in boys, thick hair growth on face and voice begins to crack. So these are the changes or the signals that sexual maturity has taken place. Now first we'll study about the male reproductive organ, male reproductive system. It is consisting of testes, vasa deferens, urethra and associated glands. So in case of testes, there is a pair of testes which are located inside scrotum, which is present outside the abdominal cavity, and this scrotum generally lowers the temperature needed for the production of sperms. And this male germ cell, that is a sperms, these are formed here. Also this testes, they release male sex organs, which is the testosterone, and its function is to regulate the production of sperms and bring changes at puberty. Now second is the vasa deferens. It passes the sperms from testes up to urethra, and urethra is a common passage for both sperms and urine, and its outer covering is called penis. Now associated glands are the seminal vesicle and prostate glands add their secretion to the sperm, and this fluid provides nourishment to these sperms and make their transport easy. Now sperms along with the secretion of glands forms semen. So this is the male reproductive system, and the different parts you are just seeing: the testes, vasa deferens, the prostate gland, the bladder, the seminal vesicle and the scrotum. Next is the female reproductive organ. It consists of ovary, oviduct and uterus. Now ovary, a pair of ovaries located in both the sides of the abdomen. Female germ cells or the eggs are produced, and at the time of birth of the girl, thousands of immature eggs are present in the ovary. On the onset of puberty, some of these eggs starts maturing and one egg is produced every month by one of the ovaries. Now oviduct, it receives the egg produced by the ovary and transfer it to the uterus. Now the main function of oviduct is the fertilization, that is the fusion of gametes, male and female gametes. It takes place in oviduct. So sometimes this question has been asked, and we will also see this question at the end of this worksheet. Now the next is uterus. It is a bag-like structure where development of the baby takes place. Now uterus opens into vagina through cervix. So this is the female reproductive diagram. So these are the two oviducts, two ovaries, and these oviducts are opening into the uterus and cervix and the vagina. So this is the complete female reproductive organ. Sometimes it has been asked in the exam, so do learn practicing drawing this diagram with these labelings. Now this fertilized egg, then it's implanted in the uterus and it starts dividing. Now the mother's body is designed to undertake the development of the child. Now the uterus prepares itself. The lining of the uterus becomes thickened and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. Now this embryo takes nourishment from the mother's blood with the help of placenta. And on the mother's side, this blood spaces, they are surrounded by villi, which is providing the larger surface area for glucose and oxygen to pass
from the mother to the embryo, and the waste is also generated by the developing embryo is removed by transferring them into the mother's blood through placenta. So that means this placenta generally provides nourishment to the embryo and removes the waste from the embryo to the mother's body. So this is all about today's topic. Now let us see the question answers. Write the functions performed by testes, vasa deferens, ovary, oviduct, uterus and placenta. So we have just seen the function of these parts. Now why are testes located in the abdominal cavity? Testes, these are located in the abdominal cavity in scrotum because it requires lower temperature than the normal body temperature. And third question, what changes are observed in the uterus after subsequent implantation of the young embryo? So after implantation, the uterus prepares itself, the lining of the uterus becomes thickens and is richly supplied with blood so as to nourish the growing embryo. And name the part of the female reproductive system where fertilization takes place. So it is the oviduct. अब एक बार वर्कशीट को हिंदी में भी हम देख लेते हैं. मानव में लैंगिक जनन. मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं और दोनों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसके द्वारा होते हैं. जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि धीरे धीरे धीमी होनी शुरू हो जाती है तो जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होते हैं और किशोरावस्था की इस अवधि को हम यौवनारंभ कहते हैं. और मेल और फीमेल में क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे जननांग या कांख के पास गहरे बालों का उगना या त्वचा का तैलीय होना. अब लड़कियों में जो आप देख रहे हैं जैसे स्तन के आकार में वृद्धि होना, रजोधर्म होना, और लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना और आवाज का फटना. तो ये जो परिवर्तन है ये संकेत देते हैं लैंगिक परिपक्वता हो रही है. अब पहले हम देखते हैं कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, उनके क्या कार्य हैं. तो सबसे पहले वृषण. वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित है और इसका वृषण कोश का तापमान तुलनात्मक शरीर के तापमान से कम होता है क्योंकि यह शुक्राणुओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है. और नर युग्मक या शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं. अब वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है जिसके कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण करना और लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन. अब शुक्रवाहिनी का क्या कार्य है? यह शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है. और मूत्र मार्ग, मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है बाहरी आवरण के साथ, इसे शिशन कहते हैं. अब मानव नर जनन तंत्र में कौन कौन सी संबंधित ग्रंथियां हैं? तो शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं. अब इसका क्या कार्य है? तो यह शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करते हैं और इस माध्यम से उन्हें पोषण प्राप्त होता है. उनके स्थानांतरण में सहायता करता है और शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं. तो ये है नर जनन तंत्र के बारे में. और ये जो अलग अलग भाग हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हम उसका आंसर भी लिख सकते हैं. अब नर जनन तंत्र के हम मादा जनन तंत्र के हम भाग देखते हैं. अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडाशय में मादा युग्मक एवं अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है. अब लड़की के जन्म के समय ही उसके शरीर में अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं. यौवनारंभ पर कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं. 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न होता है और अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं. अब अंडवाहिका जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यह इसका क्या कार्य है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है और मुख्य कार्य इसका क्या है कि अंड कोशिका व शुक्राणुओं का निषेचन यहाँ पर होता है. तो इस पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.
थर्ड है गर्भाशय, जो कि एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मादा जनन तंत्र है उसके भाग हम देखते हैं। तो ये हमें भाग इसमें नजर आ रहे हैं। अंडवाहिका, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कह रहे हैं, ये जो सफेद आपको दिख रहे हैं ये अंडाशय है, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। तो ये डायग्राम हमें याद करना है। इसमें जो ये भाग हैं कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं, या ये चित्र भी बनाने को हमें आ सकता है। तो इस डायग्राम की भी हम प्रैक्टिस करें। अब जैसा कि हमने बात की कि अंडवाहिका में अंडे का निषेचन हुआ, तो यह जो निषेचित अंडा है यह विभाजित होकर भ्रूण बना रहा है और भ्रूण गर्भाशय के अंदर स्थापित हो रहा है। वहां पर वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। अब माँ के शरीर में जब गर्भ धारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से माँ का शरीर अनुकूलित है, और गर्भाशय में प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। जैसे कि उसकी आंतरिक परत जो है वह मोटी हो जाती है और भ्रूण को पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी इसके अंदर बढ़ जाता है। अब एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब भ्रूण जो है माँ के साथ इस प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, जो कि गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, और इस प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भ्रूण है वह माँ के शरीर से भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पदार्थों का स्थानांतरण उस भ्रूण में होता है, और उसके साथ साथ जो विकासशील भ्रूण है उसके अपशिष्ट पदार्थ जो उसके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं उनका निपटान भी इस प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण के शरीर से मादा के शरीर में चला जाता है, और जो माँ के शरीर से फिर वह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब पहला प्रश्न अगर हम देखें तो अलग अलग भाग दिए हैं, उनके कार्य वृषण, शुक्रवाहिकाएं, अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और प्लेसेंटा, इन सभी के कार्य अभी हमने देखे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं। और सेकंड है वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, इसको भी अभी हमने स्टडी किया है कि ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणुओं को उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक ताप है शरीर का उससे कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण जो है वह शरीर के बाहर होते हैं। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, तो गर्भाशय की एक तो आंतरिक परत मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु उसका जो रुधिर प्रवाह है वह भी बढ़ जाता है उसके अंदर। और मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखें जहां पर निषेचन होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में। तो अंडवाहिका है जहां पर कि जो है निषेचन संभव होता है। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी और क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।